I will have a revision of yesterday's what we today. What we'll do is that we'll have an ample number of examples of the functionalities of array, list. So one fast track what we have done yesterday. Now, as the syllabus says that we need to focus on collection framework, and we have talked about what is actually the collection framework. Now, this framework is nothing but it is a collection of different classes and interfaces for the purpose of doing some manipulation with your stored values. तो जो वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं उसके साथ हम कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो फॉर दैट पर्पस दिस कलेक्शन फ्रेमवर्क इज जनरेटेड. नाउ वी कैन वर्क विद सेट, लिस्ट, queue and double ended queue also. These are the all interfaces, and basically will be working with the classes like array list, vector, linked list, priority queue, has set, linked has set, and tree stack. So these are all our data structures. So ready-made a package of all data structures made available by Java in the form of collection framework. So what we have to do is that हमें सिर्फ वो क्लासेस को यूज करना है और उसको उसके अंदर के जितने भी फंक्शनलिटीज है, जो फंक्शंस क्या क्या काम करने वाले, वो हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है और उसके साथ हमें कुछ प्रैक्टिकल्स करने हैं, जहाँ सो दैट वी कैन इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द डेटा स्ट्रक्चर प्लेज रोल इन दिस classes. So as we talked yesterday, that is collection is nothing but it is a collection representation of a single unit of object, that is a group of values, variables. So सबको represent करने वाला जो एक object होता है उसको हम collection बोलते हैं. And framework यानी this is an atmosphere, it is an architecture in which you can use different type of classes and interfaces. It is optional कि आपको उसमें से कौन सा लेना है, तो वो use करके आप उस data structure को implement कर सकते हैं. Basically, collection framework is a collection of interfaces and classes with their own functionalities. उनके खुद के functions है, and all functions will be working on the basis of their algorithm. So algorithm is one of the key part of collection framework, because we are working with the data structure, and data structure always work with some algorithm. So predefined algorithm already written for us. We just have to implement using some interfaces and some classes. Now in this, why we go for collection framework? Because there are some benefits of going behind this Java collection framework. That is, it reduces the development efforts, it increases the quality of your execution, it goes for usability and interoperability. And last one, most important, that is, it reduces the efforts. No need for writing any program. Ready-made APIs are there for us to work for sorting out your problems. Now, this is one of the basics hierarchy we have to follow whenever we are working. We will be talking about the collection framework. All blue colors denotes your interfaces. That is, we cannot create an object directly. So indirectly creating an object of interface is done. And all that is displayed with the orange color, that is all classes that will be implementing in your regular assignments. So basically the parent class, parent interface of this package is iterable, and it contains some functions that are most important for the purpose of retrieving something from your collection classes. तो हम कुछ functions इसके अंदर की use करेंगे, जैसे iterator नाम का एक फंक्शन है, जो से हम लूप एंटर करेंगे, उस प्रोग्राम के वैल्यूज के साथ इंटरेक्ट करेंगे. हैश नेक्स्ट से हम चेक कर सकते हैं कि सही तरीके से हमारे एरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में कुछ है क्या नहीं. एंड थर्ड वन, नेक्स्ट फंक्शन से हम उसको रिट्राइव करके वैल्यू को डिस्प्ले करके नेक्स्ट कर्सर को मूव भी कर सकते हैं. सो ये सब फंक्शंस रेडीमेडली अवेलेबल है आपको आपके इटरेबल ये क्लास के इंटरफेस के अंदर. एंड सेकेंड इंटरफेस दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम योर इटरेबल, दैट इज कलेक्शन. parent of all your list, queue and stack sets, सबका parent एक ही है, that is collection, and it has ample number of functions. बहुत सारे functions है, वो हम functions हम use करेंगे. और as it is a parent, it means all features are derived in your child classes and interfaces. So collection framework को, collection interface को तीन अलग interface ने फिर से inherit किया है. What is list, another one is queue, and third one is set. So list is nothing but linked list, doubly linked list, singly linked list. Linked list में मतलब array, elements been added one after the another in asynchronous way, and duplicate values are been added into this. So ध्यान में रखना है, list में duplicate values भी हम add कर सकते हैं और उसको asynchronous तरीके से वो add किए जाते हैं. So you can use at any moment, आप उसको ले सकते हैं, उसके साथ updation कर सकते हैं, deletion भी, कुछ भी operations उसके साथ कर सकते हैं in asynchronous way.
सो लिस्ट में बहुत तरीके के क्लासेस है, उसमें से हमें जो पढ़ना है और यही पैकेज में अवेलेबल, दैट इज एरे लिस्ट, देन देयर इज अ लिंक लिस्ट, देन देयर इज अ वेक्टर एंड देयर इज अ स्टैक आल्सो। सेम वे क्यू इंटरफेस में भी दो दो क्लासेस है, व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू एंड व्हाट इज एरे क्यू। ओके, सो डी क्यू, डबल एंडेड क्यू इज वन ऑफ द, वी कॉल इट एज एन एरे क्यू। सो ये क्यू भी बना सकते हैं हम, लिस्ट भी बना सकते हैं। एंड लास्ट वन सेट, दैट हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और सॉर्टेड सेट, जैसे ट्री सेट भी हम बना सकते हैं। द होल क्लासेस एंड इंटरफेस इटसेल्फ इज एन कलेक्शन फ्रेमवर्क। सो ये हायरार्की ध्यान में रखना है। और हम अभी एंटर कर रहे इटरेबल पैरेंट इंटरफेस के, कलेक्शन इंटरफेस के, लिस्ट इंटरफेस के सबसे पहले वाली क्लास, दैट इज एरे लिस्ट क्लास, विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द एरे लिस्ट, ये वाला क्लास। और इस क्लासेस के हमने कल एग्जांपल्स भी कुछ देखे थे, हाउ वी विल बी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एरे लिस्ट। नाउ व्हेनेवर वी आर मूविंग, ये हमें फंक्शंस पता होने चाहिए। जैसे मैं बोला कि सबसे पैरेंट वाला इटरेटर नाम की जो इंटरफेस है, उसके अंदर कुछ इटरेटर नाम का फंक्शन है, जिससे हम यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के जो भी एक आप लिंक लिस्ट क्यू स्टैक बनाएंगे, उसके एलिमेंट को फेच करके रिट्राइव करके डिस्प्ले करने का काम ये इटरेटर आपके लिए करेगा। सो ये एक छोटा फॉर लूप है जो आपके क्लासेस के ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करके उसके वैल्यूज को डिराइव करेंगे आपके लिए। और ये कुछ तीन फंक्शंस है जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्लेइंग समथिंग, दैट इज हैज नेक्स्ट। ये बुलियन डेटा टाइप रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, कुछ होगा तब ये ट्रू भेजेगा। आपके लिस्ट में कुछ है, आपके क्यू में कुछ होगा तो वो आपको ट्रू भेजेगा, अगर नहीं होगा तो इट विल सेंड यू फॉल्स। नेक्स्ट नाम का जो आपका वेरिएबल है, दैट इज रिटर्न टाइप इज ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट यानी ये वैल्यूज को रिट्राइव करके आपको दिखाएगा। एंड रिमूव नाम के फंक्शन से आप एनी मूवमेंट में यू कैन रिमूव द वैल्यूज एडेड इनटू योर लिस्ट और क्यू और स्टैक, जहां पर भी आपने स्टोर करके रखा है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन फंक्शंस आपको यूज करने पड़ते हैं इन इटरेटर क्लास। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कलेक्शन इंटरफेस, जो चाइल्ड है इटरेटर का, तो उसके अंदर बहुत सारे 15 फंक्शंस है, वो हमें यूज करने पड़ते फ्रिक्वेंटली। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैक में भी आ जाएंगे, क्यूब में भी आ जाएंगे, हैशटैग में भी आ जाएंगे। तो सब तरफ ये काम अपना दिखाने वाले अपने अपने तरीके से। फर्स्ट वन इज ऐड, फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग एन एलिमेंट, एड ऑल फॉर एडिंग अ होल ऑब्जेक्ट, यानी एक एरे लिस्ट को दूसरे एरे लिस्ट में ऐड करने के लिए ऐड ऑल बोल के फंक्शन हम यूज करते हैं। क्लियर फंक्शन से हम क्लियर करेंगे, ये सब ऑपरेशंस हम आज करने वाले हैं। देन कंटेन से हम सर्च कर सकते हैं कि क्या ये नाम अवेलेबल है कि कुछ आपके एरे लिस्ट में। देन कंटेन्स ऑल, देन इक्वल्स, हैश कोड, इज एम्प्टी, इटरेटर, रिमूव ऑल, रिटेन ऑल, साइज। एंड लास्ट के दो इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको अगर आपकी क्यू क्यू को, स्टैक को एरे में कन्वर्ट करना है, एरे, क्योंकि ये एरे लिस्ट इज समवट डिफरेंट और आपको उसको रन टाइम में कन्वर्ट करना है एरे में, तो यू कैन यूज टू एरे नाम का फंक्शन से आप उसको यूज कर सकते हैं। सो यस्टरडे वी हैव सीन द बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द लिस्ट इंटरफेस, ये चाइल्ड है, देखो देयर ये हायरार्की ऐसा है, parent is iterable, it has been derived a collection interface, और finally a third interface that is list। ये तीनों इंटरफेस है, iterable, collection and list। ये हायरार्की में ऐसा है, iterable, collection and this list। एंड उसके अंदर में जो भी क्लासेस है वो है, हम ये चार क्लासेस के बारे में बात करेंगे और उसके ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं। वन इज एरे लिस्ट, second one is linked list, third one is vector, and fourth one is stack। we are creating implicitly using the list because list ये parent interface है, उसका हम बना सकते हैं इस तरीके से। सो वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। और ध्यान में रखना ये चार ही क्लास आपके लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, देयर इज नो एक्स्ट्रा क्लासेस अवेलेबल इनटू द योर लिस्ट। सो लिस्ट कंटेन ओनली 4 क्लासेस, वन इज एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, थर्ड वन इज वेक्टर एंड फोर्थ वन इज स्टैक। और ये थोड़ा सा अलग क्योंकि इट इज जावा इज एन ऑर्डर कलेक्शन। ऑर्डर यानी क्या, जैसे आप ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर इंक्रीमेंट करके जाएंगे। ऑल वैल्यूज विल बी एडेड एज पर द इंडेक्स, आपको इंडेक्स नंबर की देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इट विल ऑक्यूपाई द इंडेक्स फ्रॉम 0 1 2 3 4। तो इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन, ध्यान में रखना है, लिस्ट इटसेल्फ इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, इट इज asynchronous and duplicate values can be added into your list interface। so ये बेसिक होता है इंटरफेस के बारे में। और हमने ये एग्जांपल में देखा कि किस तरीके से हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसको वैल्यूज हम कैसे ऐड कर सकते हैं और डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, तो वो कल वाला एग्जांपल में हमने देखा। एंड वी हैव सीन दिस आउटपुट, एरे लिस्ट में जो भी 3 चीजें हमने ऐड की थी उसको ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं। सेम वे लिंक लिस्ट में जो भी आप ऐड करते हैं ऑल विल बी डिस्प्लेड स्क्वायर ब्रैकेट, जस्ट लाइक एन एरे।
एंड डिलिमिटर कॉमा इज यूज टू सेपरेट योर वैल्यूज। सो जैसे यहाँ पर जरा नाम हमने कुछ 3 नाम ऐड किया और ये सब नाम के बीच में डिलिमिटर यानी सेपरेटर बोल के कॉमा ने काम किया है। सेट में भी वही तरीके से काम होता है, बस डिफरेंट होता है कि मैप में आपको मैपिंग करनी पड़ती है उसकी वैल्यू और उसके यूनिक आईडी इंडेक्स के साथ। सो इंडेक्स भी देना पड़ता है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको वैल्यू भी देनी पड़ती है। बट प्रीवियसली सेट, लिंक लिस्ट और एरे में देयर इज नो नीड फॉर गिविंग इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट जिस तरीके से आपने ऐड किया है उसी सीक्वेंस में वो ऐड होते जाएंगे। दिस इज इन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। बस सेट में थोड़ा सा अलग होता है। सेट में ए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि whenever anything is added in a set, it is following some nomenclature of numbering left and right side। ट्री फॉर्मेट में वो वैल्यू करता है। तो ए देन जेड यानी टॉप मोस्ट जो होता है वो बीच में आता है, एंड लोअर साइड विल बी ऑन लेफ्ट, हायर साइड विल बी ऑन राइट। So set and map will be following some different algorithm for storing of values, whereas array list and linked list will be following some different mechanism of adding element into your list। So array list में जिस तरीके से array में values ऐड किए जाते हैं उसी तरीके से array list में भी values ऐड किए जाते हैं, बट ये लिस्ट फॉर्मेट में होते हैं। सो व्हाट इज देयर इन दिस array list, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वी कैन ऐड डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है स्मिथ, सॉरी जॉन सैम मैरी, यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं पड़े। हमने एक एग्जांपल में देखा कल, एक रवि को हमने डबल 2 बार ऐड किया था, तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है array list। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यू, कैन array list add duplicate values? So yes, duplicate values are added। And second most important thing is it is in ordered way and it has been added inserted in a non-synchronized way। non-synchronized way से हम उसको ऐड कर सकते हैं। और बेसिक चीज होती है कि array list is dynamic। रन टाइम में आप उसको, देयर इज नो नीड फॉर गिविंग अ साइज टू योर array list। आपको जहां पर भी जिस सिचुएशन में वैल्यू ऐड करना है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आपको लग रहा है उसको डिलीट करना है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू डू सम मैनिपुलेशन बाय आफ्टर सर्चिंग इट, यू कैन डू द मैनिपुलेशन। वो एरे में पॉसिबल नहीं था। एरे एक कांस्टेंट साइज का होता है, आपको उसकी वैल्यू को अपग्रेड करना पड़ता है। एरे लिस्ट में वैसा नहीं, आपको जितना चाहिए उतने वैल्यूज आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड रन टाइम में उस वैल्यूज को आप डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एनी ऑपरेशन कैन बी डन। और ध्यान में रखना है एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इट इज मैंडेटरी टू यूज अ न्यू कीवर्ड। सो एरे लिस्ट, आई एम यूजिंग द नेम, गिविंग द नेम टू दिस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट आप जो चाहिए वो नाम दे सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट को। एंड न्यू कीवर्ड से यू आर क्रिएटिंग अ एरे लिस्ट। सो इट इज सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट and it is always stored in the format of index। ध्यान में रखना है array list all values are stored in the format of index। आपको index number देने की जरूरत नहीं, index number will be created automatically। arrays में आपको index number यूज करना पड़ता था for adding a value at that index। array list में there is no need for giving an index number। हम index number के ऊपर कभी काम नहीं करने वाले, हम direct values के ऊपर काम करने वाले हैं। so this is one of the benefit of array list। Now yesterday we have seen some example, very simple example we have seen that हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, एक क्लास किया था। ध्यान में रखना all collection framework is present in your java.util package। तो util package is the most important package as far as collection framework is concerned। तो सबसे पहला जब भी आप प्रोग्राम चालू करेंगे collection framework का, ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पैकेज जो आपको इनहेरिट करना है, यूज करना है, दैट इज java.util package। उसको आपको इंपोर्ट करना, इट्स मैंडेटरी। सेकेंड इज थिंग इज दैट whenever you are create list, array list, तो आप डिसाइड करेंगे आपको किस तरीके की array list बनानी है। स्ट्रिंग की बनानी है, इंटीजर की बनानी है, फ्लोट की बनानी है, डायमंड डबल की बनानी है, कैरेक्टर की बनानी है, आपकी चॉइस है। सो सिंटेक्स इज वेरी सिंपल। इन योर लेस देन ग्रेटर देन सिंबल, जिसको हम डालते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता, ध्यान में रखना। इट इज एंगुलर ब्रैकेट यू हैव टू यूज whenever you are moving to array list। it is optional, ध्यान में रखना, इट्स ऑप्शनल। आपको अगर रेस्ट्रिक्ट करना है आपके यूजर को सिर्फ स्ट्रिंग ही डालना है, सो यू हैव टू पुट इट इनटू योर एरे ब्रैकेट द स्ट्रिंग वेरिएबल। अगर आपने स्ट्रिंग बोल दिया ये स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने इंटीजर बोला तो एरे लिस्ट विल बी क्रिएटेड ऑफ इंटीजर ओनली। अगर आपने कैरेक्टर बोल दिया तो आपका एरे लिस्ट कैरेक्टर का ही बनेगा। और आपको मिक्स करना है, आपको इंटीजर भी चाहिए, फ्लोट भी चाहिए, नो नीड फॉर गिविंग दिस एंगुलर ब्रैकेट एंड देयर इज नो नीड फॉर गिविंग एनी रैपर क्लास जैसे कैरेक्टर, इंटीजर और स्ट्रिंग। और ध्यान में रखना, इट शुड बी अ रैपर क्लास, नॉट एन int int, not char char, not float float। इट शुड बी अ क्लास, दिस इज कॉल्ड अ रैपर क्लास। तो इंटीजर नाम की क्लास है, उसके हमें रैप करना पड़ेगा
ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज ऑप्शनल, आपको डालना होगा तो डालो, नहीं डाला तो भी कोई फर्क नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में इंपॉर्टेंट होता है आपको ये यूज करना एंगुलर ब्रैकेट्स। सो आप एरे लिस्ट स्ट्रिंग की बना सकते हैं, इंटीजर की, फ्लोट की, डबल की, जो भी डेटा टाइप्स आपके पास है आप उसकी एरे लिस्ट बना सकते हैं, ये पॉसिबल है आपको। एंड इट्स डायनामिक, it is non-synchronous, and duplicate values can be added into the array list. So this is one of the important thing. Or whenever you want to display something, most important thing you have to keep in mind, हमें iterator पैरेंट इंटरफेस, मैंने हायरार्की में बताया, ये पैरेंट इंटरफेस है, उसको हमें उसके फीचर को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली रेडीमेड। सो हाउ इट इज बीन यूज्ड, इट्स वेरी सिंपल। इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है एंड उसका इंटरफेस है, तो हम उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हमें उसको फंक्शन यूज करना पड़ता है, इटरेटर नाम का फंक्शन। वो फंक्शन को हम यूज करके जो लिस्ट हमने बनाई है उसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते एंड हैज नेक्स्ट से देख सकते कि अगर उसके अंदर कुछ होगा तब हम ये ट्रू वैल्यूज आ जाएंगी, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। वाइल लूप में एंटर कब करेगा, जब हमारे लिस्ट में, एरे लिस्ट में कुछ वैल्यूज होंगे तभी वो वाइल लूप में एंटर करेगा। एंड यूजिंग next function you can display all values on your screen. Okay, so 3 लाइन ऑफ कोड। इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उसका ऑब्जेक्ट हम न्यू कीवर्ड से नहीं बना सकते बिकॉज इट इज एन इंटरफेस। एंड सेकेंड थिंग इज दैट वाइल लूप से हम इस हैज नेक्स्ट नाम के फंक्शन से चेक करेंगे कि इटरेटर में कुछ आपने जो भी लिस्ट बनाई है लिस्ट उसके अंदर कुछ है क्या, और अगर होगा तभी जाके नेक्स्ट नाम के फंक्शन से हम उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से कल लिया है and I think everyone has understood this program, that we have added the values into your array list and we have displayed the values using that iterator. Is it clear? Yes. Yes, सबको समझ में आया, आगे जाना है? Yes sir. चलो नेक्स्ट, वन सेकेंड। नाउ थोड़ा आगे गए हम, आज हमें काम करना है एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है, थोड़ा बिग ऑपरेशंस हमें कुछ करने पड़ेंगे। सो विल गो मूविंग टुवर्ड द सेम प्रोग्राम अगेन, एरे लिस्ट, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमें देखने। सो देयर आर 3 वेज ऑफ कन्वर्टिंग एरे लिस्ट इनटू एन एरे। अभी हमने एरे तो पिछले चैप्टर में पढ़ा है, हाउ एरेज आर बीइंग क्रिएटेड। नाउ एरे लिस्ट इज समवॉट डिफरेंट एंड एरे इज समवॉट डिफरेंट, ध्यान में रखना है। array list is a collection framework, array itself is a, क्या है array? It is a data structure and second important thing it is a data type. Okay, तो array और array list दोनों में फर्क है। array list is a collection framework object whereas array is one of the data structure। तो ये दोनों में जब भी हम आपको करना चाहते हैं, रन टाइम में आपको लग रहा है कि array list को array में कन्वर्ट करना है, so there are 3 basic ways that from which you can convert it into array. So array list को array में convert करने के 3 different mechanism. First one, you can use a object array। object नाम की एक क्लास है, उसका array बना के toArray नाम का फंक्शन यूज करके आप array list को array में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन थिंग इज दैट। सेकेंड वन, आप एक वेरिएबल, array का वेरिएबल यूज करके उसके अंदर भी toArray नाम के फंक्शन से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ध्यान में रखना है कि हमें फिर से उसको टाइप कास्टिंग करना जरूरी। सो एक तो ऑब्जेक्ट के एरे में कन्वर्ट करो, या फिर एक वेरिएबल के एरे में कन्वर्ट करो, या फिर गेट मेथड यूज करके हम उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस आर द बेसिक 3 थिंग्स। और ध्यान में रखना, toArray इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज फॉर कन्वर्टिंग एरे लिस्ट इनटू एन एरे। सो toArray मींस कन्वर्टिंग टू एन एरे, converting to an array. This is done using toArray function. So this is one of the important thing. Now ये एग्जांपल हम थोड़ा सा ओरली ले लेंगे कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बाद में जाएंगे, पर हम एक्सप्लेन करके लेंगे हमने करना क्या है। Now we'll start for the left hand side. हमने util पैकेज लिया है, उसके अंदर की एक क्लास दैट इज ArrayList क्लास। We have used this ArrayList class. Now I have declared a class that is ArrayList to array, यानी मुझे कन्वर्ट करना है ArrayList को array के अंदर। तो सबसे पहला काम है मुझे इंटीजर का array बनाना है। So ArrayList, I have created a ArrayList object name as AL using a new keyword,
एंड इट इज ऑफ इंटीजर, यानी ये सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करेंगे। सो ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया। नाउ आई विल बी एडिंग सम 4-5 वैल्यूज। तो मैंने ऐड कर दिया 10 नंबर को, 20, 13, 14, ये 4 नंबर को मैंने ऐड कर दिया। अब ये चारों नंबर मेरे एएल में ऐड किए। एंड व्हाट इज एएल? एएल इज नथिंग बट योर एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट। अभी इसमें ऐड हो चुके हैं। अभी मुझे कन्वर्ट करना है उसको एरे में। सो वेरी सिंपल, इंटीजर का एरे बनाना है, इंटीजर एरे, एंड इट इज द नेम ऑफ दैट एरे इज ARR, एंड इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग अ साइज। सो अभी आपको पता है व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग एन एरे, श्योरली इमीडिएटली जब भी हम उसको डिक्लेयर कर दे तो हमें उसकी साइज देना बहुत जरूरी कि आपको एरे कितना बनाना है, बिकॉज इट इज स्टैटिक। ओके, सो बनाने के लिए AL डॉट साइज, मेरे ख्याल से कल हमने फंक्शन देखा है, साइज फंक्शन से आप उस इंटीजर ARR को आप साइज दे सकते। एंड नाउ वेरी सिंपल, AL दैट इज एरे लिस्ट डॉट टू एरे, and you are converting to an array your ARR. So ARR convert किया जाएगा typecasting and it will be stored into ARR. So array list will be converted to an array and it will be stored into ARR, and this ARR is been assigned to your left variable that is ARR. It is nothing but an integer array. So आप एक array list को integer के simple integer के array में convert करेंगे by using to array function. और डिस्प्ले करने के लिए मेरे ख्याल से एरे का डिस्प्ले करने का मैकेनिज्म हमें पता है कि देयर इज जस्ट अ फॉर लूप, और यहाँ पर जब भी हम एरे में जाते हैं तो श्योरली हमें इंडेक्स को रिट्राइव कर सकते हैं। एरे लिस्ट में हम इंडेक्स के साथ रिट्राइव नहीं कर सकते, वहां पर इटरेटर यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हम फॉर लूप में इंटीजर को int i is equal to 0, i is less than एरे की लिस्ट लेंथ तक हम लास्ट में जा सकते हैं, i प्लस प्लस से हम उस एरे के वैल्यू को डायरेक्टली दिखा सकते हैं। सो इज इट क्लियर? अ सिंपल वे ऑफ डिस्प्लेइंग, a simple way of displaying a value of array list using an array. So पहले array list को array में कन्वर्ट करेंगे और for loop से हमने सिर्फ उसको array को रिट्राइव किया है हर एक वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे। अनदर वे इज दैट इंटीजर एरे, जो हमने अभी ये एग्जांपल दिया था। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट का, सेकंड वे। ये फर्स्ट वे मैंने बताया, जैसे मैंने बोला कि एक हम ऑब्जेक्ट के एरे से बना सकते हैं, एक टू एरे नाम के फंक्शन से यूज कर सकते हैं, और एक थर्ड वन इज गेट नाम के फंक्शन से यूज कर सकते। तो फर्स्ट वन जो है ये हमने देखा, दिस एरे वाला, ये ब्लू वाला, तो ये हमने इंटीजर का एरे बना के उसके अंदर हमने उसको फॉर लूप से एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ सेकंड वन इज थिंग इज दैट आप उसको ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्टली टू एरे नाम के फंक्शन। तो टू एरे फंक्शन विल बी कन्वर्टिंग टू एरे लिस्ट। एल मतलब क्या, आपके एरे लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे एरे के एरे में कन्वर्ट करेंगे, एंड इट इज स्टोर्ड इनटू एन ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान में रखना है, दिस इज वन ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द क्लास, एंड यहाँ पर हम उसका एरे यूज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड स्क्वायर ब्रैकेट। सो ऑब्जेक्ट का एरे आ जाएगा और उसको नाम दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अभी फॉर लूप सेम तरीका है, फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को भी रिट्राइव करके उसकी वैल्यू को दिखा सकते हैं यूजिंग टेकिंग द हेल्प ऑफ योर इंडेक्स नंबर। So we can display it using an array also, we can display it using an object also, object array also. So ये दो तरीके। And third way is we with the taking help of your get function। तो तीसरे तरीके से हम उसको get function से यूज कर सकते हैं। तो सिंपल होता है, एक इंटीजर का array यूज क्रिएट करना है एंड फॉर लूप से उसको यूज एग्जीक्यूट करना है। बट जब भी आप यूज कर एग्जीक्यूट करेंगे उस इंटीजर को array से, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली इंडेक्स नंबर को यूज किया, यहाँ पर हम एरे लिस्ट डॉट गेट नाम के फंक्शन से भी उसकी वैल्यू को रिट्राइव करके डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सो गेट फंक्शन से भी हम वैल्यूज ले सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्शन से भी वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके भी उसकी वैल्यूज को हम रिट्राइव कर सकते हैं। सो दिस आर द ओनली 3 वेज फॉर कन्वर्टिंग एन एरे लिस्ट इनटू एन एरे and retrieving your array values for the purpose of displaying something, for the purpose of doing some manipulation. Is it clear? Okay, 3 तरीके से हम array list को array में convert कर सकते हैं। One is with object using a to array function, second one is just an integer, और जो भी आपका array है उसको यूज करेंगे with to array नाम का फंक्शन से। बट ध्यान में रखना है ब्रैकेट में हमें कुछ तो भी अलग देना है। तो यहाँ का टू एरे अलग है इंटीजर का, और यहाँ का टू एरे अलग है। ऑब्जेक्ट में जब भी कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्टली इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, बट व्हेनेवर इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू योर इंटीजर एरे वी हैव टू पास दैट वैल्यू द नेम ऑफ दैट वेरिएबल ऑफ योर एरे। सो ये थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। एंड थर्ड वन, आप एरे में कन्वर्ट करने के
करते समय और रिट्राइव करने के लिए गेट नाम के फंक्शन से उसकी इंडेक्स वैल्यू को भी यूज करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से हम एरे के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। यस, इज इट क्लियर? 3 ways: object array, simple array, and third one is get function. Okay. Yes. Now this is one of the program. लिख के लो. Write a program for reversing a array list. Write a program for reversing a array list of an string. Reversing a array list of a string. Write a program for reversing a array list of a string. So we'll start a program. हम util पैकेज को इनहेरिट करेंगे और ध्यान में रखना है कि whenever we are using this one, so हमें 2 चीजें लगते हैं रिवर्स करने के लिए. एक होता है array list and second one is collection. उसका parent, उसका parent इंटरफेस है collection नाम का इंटरफेस. उसका एक फंक्शन है called as a reverse. Okay, so we are creating a class called as an array list reverse and we are adding those element into this. So I have added Perl, Java, Python and one of the blockchain ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग डायरेक्टली डिस्प्ले करने के लिए मैंने उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले कर दिया, दैट इज इनटू 2 स्ट्रिंग. और रिवर्स करने के लिए दिस इज कलेक्शन डॉट रिवर्स माइलैब. सो आई विल गो फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू. सो विल क्रिएट सेम प्रोग्राम. सो राइट क्लिक, one second. So very simple programs are expected. Just have to demonstrate everything. आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये इसके फीचर्स को सिर्फ इम्प्लीमेंट करके देखना कि क्या हम एक डेटा स्ट्रक्चर के साथ वर्कआउट कर सकते हैं क्या. सो न्यू एंड क्लास. सो दिस इज रिवर्स ऑफ एरे लिस्ट. सो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एरे लिस्ट रिवर्स, REVERSE. और मुझे मेन फंक्शन चाहिए तो मैंने यहाँ पर उसको क्लिक कर दिया. सो आई वांट अ मेन फंक्शन इनटू दिस. सो array list reverse is the name of a class and I have created this class. Okay, so see, first thing is that you have to import one package. So I am saying import java.util package, util.star. तो ये पैकेज को मैंने इंपोर्ट कर दिया. ओके, नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज दैट आई वांट टू, तो मैं प्रोग्राम में यहाँ पर डाल देता हूँ. मुझे प्रोग्राम किस तरीके का लिखना है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ. राइट अ प्रोग्राम फॉर रिवर्सिंग string array list and display on console. सो स्ट्रिंग का एरे लिस्ट बनाना है एंड वी हैव टू, हमें उसको डिस्प्ले करना है कंसोल के ऊपर. सो सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा एरे लिस्ट. और जहां पर मैंने बोला है एरे लिस्ट स्ट्रिंग का ही चाहिए तो हमें यहाँ पर उसको मैंडेटरी करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग नाम की क्लास को यूज करना पड़ेगा. ओके, और उसके ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे जैसे AL. मैंने ऑब्जेक्ट को नाम दिया, आपको जो नाम देना है आप उसको दे सकते हैं. यूज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. और मैंने अभी यहाँ पर कुछ नहीं किया. सो इट इज ऑप्शनल कि अगर आपने यहाँ पर दिया यहाँ पर नहीं दिया तो भी चलता है. ओके, नाउ AL array list dot add नाम के फंक्शन से हम उसके अंदर वैल्यूज को ऐड करेंगे. सो विल बी एडिंग समथिंग. तो मैं यहाँ पर डबल कोट में, बिकॉज इट स्ट्रिंग मैंडेटरी हो जाता है, सो मैं बोलता हूँ जावा देन array list dot add पाइथन. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ले लेंगे array list dot add Android and one more I am adding array list dot add. और मैं इसको स्विफ्ट प्रोग्रामिंग को डाल देता हूँ. तो ओके, मैंने इसके अंदर 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐड कर दिया एंड नाउ मुझे इसको डिस्प्ले करना है. तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से मैं इसको डिस्प्ले करूंगा. तो मैं यहाँ पर बोलता ओरिजिनल लिस्ट.
तो ओरिजिनल लिस्ट, तो मुझे डिस्प्ले करना है उसको। सो वेरी सिंपल, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से मैं उसको डिस्प्ले करूंगा। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे, वेरी सिंपल, इट इज एरे लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग से हम उसको डिस्प्ले करेंगे। ना मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिवर्स का लॉजिक, रिवर्स करना है, रिवर्स लॉजिक। तो मैं उसके कर करने कलेक्शन डॉट रिवर्स, इट्स कलेक्शंस डॉट रिवर्स, कलेक्शंस डॉट रिवर्स। और किसको रिवर्स करना है आपको, मुझे एरे लिस्ट को रिवर्स करना है, ऑटोमेटिकली इट विल बी रिवर्स। और अभी हम बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के रिजल्ट आफ्टर रिवर्स, एंड आई वांट टू डिस्प्ले इट, वेरी सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँ, दैट इज एरे लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग, दैट्स इट। मैंने इसको सेव कर दिया, और व्हेन आई एम रनिंग इट, यू सी, so this is जावा, पाइथन, एंड्रॉइड और स्विफ्ट, ये था हमारा सीक्वेंस। अभी डायरेक्टली हमने एल्गोरिथम यूज किया, दैट इज कलेक्शंस डॉट रिवर्स का नाम के फंक्शन से, और हमने उसको स्विफ्ट थर्ड नंबर का इंडेक्स था, 3 को 0 बना दिया, 2 को 1 बना दिया, 1 को 3 बना दिया, एंड 0 को 4 बना दिया। सो डेटा स्ट्रक्चर के वैल्यूज के मैनिपुलेट करने का काम सिर्फ एक फंक्शन, एक एल्गोरिथम हमारे लिए कर सकता है। इज इट क्लियर नाउ? यस, यस, यस। ओके। अभी ये जैसे मैंने बोला, ये एक तरीका है डिस्प्ले करने का। दूसरा एक तरीका है आपको डिस्प्ले करने का, इंडिविजुअल लाइन बाय लाइन कोड को आपको दिखाना होगा, तो वेरी सिंपल है, फॉर लूप यूज कर सकते हैं आप। फॉर लूप, फॉर लूप से अच्छा तो होता है आप इटरेटर भी यूज करो। सो इटरेटर, मैं इसको नाम देता हूँ आई टी इज इक्वल टू एरे लिस्ट डॉट इटरेटर, एंड वाइल लूप्स यूज करना है, वाइल लूप इनटू ब्रैकेट, दैट इज आई टी डॉट हैज नेक्स्ट, यानी कुछ होगा उस इटरेटर में तो हमें डिस्प्ले करना है। तो कैसे डिस्प्ले करना है, इट्स वेरी सिंपल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमें भी डिस्प्ले क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, इट इज आई टी, इटरेटर में सब आ चुका है, देखिए व्हाट इज दिस आई टी, ये पूरे एरे लिस्ट अभी इटरेटर में आ चुकी है, तो हमें सिर्फ उसका इटरेटर का यूज करना, आई टी डॉट नेक्स्ट। सो ऑटोमेटिकली वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, और आपका कर्सर नेक्स्ट मूवमेंट में जाएगा। सो हम ये जो डायरेक्ट दिखा रहे थे ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा था, अभी हम इंडिविजुअल दिखाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से। देखो सी, स्विफ्ट विल बी डिस्प्लेड फर्स्ट, एंड्रॉइड, पाइथन एंड जावा। ओके, नाउ मुझे ये भी इसी को इस तरीके से भी नहीं दिखाना, मुझे, मैं इसको फिर से कमेंट में डालता हूँ, मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना है, और एरे लिस्ट जो भी मैंने बनाए उसको एरे में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करना है, फॉर लूप से यूज करना है। सो मैं यहाँ पर यूज करूंगा इंटीजर, बिकॉज इट इज ऑफ स्ट्रिंग, आई थिंक सो। सो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एरे है, तो हम उसको बोलेंगे ए आर आर इज इक्वल टू न्यू एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग इनटू ब्रैकेट, और कभी भी आप जब भी एरे देते तो आपको उसको लेंथ पता होना चाहिए। सो एरे लिस्ट डॉट साइज, तो जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते तो आपको उसकी साइज पता होनी चाहिए, डॉट साइज। तो ये फंक्शन से हमें बन जाएगा हमारा ये ऑब्जेक्ट, दैट इज ए आर आर। सो ए एल विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस ए आर आर। तो कैसे करना है अभी, जैसे अभी यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि हम 3 तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल में बताया था। एक होता है सिंपल, ये इंटीजर का है, यहाँ पर इंटीजर से इसकी वजह से हमने इंटीजर का एरे लिया। अब मेरे पास ये प्रोग्राम है, मैंने स्ट्रिंग लिया है, सो इसलिए वजह से मैंने स्ट्रिंग का एरे बना दिया। Now, this is my first step is completed. Now I want to convert this array list into and this one. So मुझे कैसे convert करना है इसमें डालने के लिए? So ARR is equal to array list dot
टू एरे, और इस ब्रैकेट में आपको देना पड़ेगा दैट इज ARR। ओके, सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एरे लिस्ट। नाउ आप फॉर लूप से उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी एरे में कन्वर्ट किया, तो फॉर लूप तो बहुत सिंपल है। फॉर लूप INT I इज इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स हमेशा एरे का 0 से चालू होता है। I इज लेस देन, अभी लेंथ पता होनी चाहिए, दैट इज ARR डॉट लेंथ। ये नाम के फंक्शन से हम उसकी लेंथ लेंगे और I प्लस प्लस भगाएंगे, और हमें डिस्प्ले करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम अभी इंडेक्स वैल्यूज को डिस्प्ले करेंगे। सो वैल्यू एट इंडेक्स, अभी इंडेक्स कैसे निकालना है, I से प्लस डबल कोड से थोड़ा सा इक्वल टू साइन प्लस ARR स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर। ओके, तो वेरी सिंपल। अभी हम इंडेक्स वैल्यू को भी रिट्राइव कर सकते हैं और उसको भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सिंपल था टू स्ट्रिंग से, दिस इज वन ऑफ द वे, ये पहला तरीका है डिस्प्ले करने का। सेकेंड टेक्निक वे इज यूजिंग दिस इटरेटर, ये इटरेटर से हमने डिस्प्ले कर दिया। और थर्ड वे इज कन्वर्टिंग इट इनटू एन एरे एंड डिस्प्लेइंग यूजिंग योर इंडेक्स नंबर। ओके, so now I am running this program। अब देखो इंडेक्स नंबर भी आ गया, 0 इंडेक्स पे स्विफ्ट आ गया, एंड्रॉइड आ गया, पाइथन आ गया, यानी रिवर्स भी किया हमने, दिस इज रिवर्सिंग, एंड हमने डिस्प्ले भी किया 3 अलग अलग तरीके से। यस, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, नाउ फोर्थ वे, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था, ये हमने प्रेजेंटेशन में बोला कि हम एक तो इस तरीके से कर सकते हैं डिस्प्ले, एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड टेक्निक इज दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एन ऑब्जेक्ट एरे। ओके, तो ये प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, उसको कमेंट में देता हूँ। ये मेरा अभी थर्ड वाला पार्ट था। अभी मुझे क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में। ओके, अभी मेरे पास एरे लिस्ट है दैट इज AL, मैंने उसको रिवर्स भी कर दिया डायरेक्टली, और उसी जगह पर ओवरराइड कर दिया दैट इज कलेक्शन डॉट रिवर्स नाम के फंक्शन से वही एरे लिस्ट को जैसा है उसको उल्टा कर दे, उसी लोकेशन में स्टोर करके रखा है। अभी मुझे डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो वेरी सिंपल लॉजिक, दैट इज यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एरे, और उस ऑब्जेक्ट एरे को जब क्रिएट करेंगे डायरेक्टली टू एरे फंक्शन से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, इट्स ऑब्जेक्ट, और ये एरे करना है, और मैं उसको नाम देता हूं OB इज इक्वल टू एरे लिस्ट डॉट टू एरे। और जैसे ऊपर वाले टू एरे फंक्शन में हमने जब भी कन्वर्ट कर दिया है, तो हमें यहाँ पर एरे के वैल्यू को, वेरिएबल को फिर से असाइन करना पड़ता था। यहाँ पर वैसी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ उसके अंदर कन्वर्ट करना है और फॉर लूप को भगाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। सो फॉर INT I is equal to 0, I is less than, what less than, it is OB dot length, यानी ये ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है उतना ही, एंड देन I प्लस प्लस। ओके, और हमको उसी को यूज करेंगे, दैट इज वही, दैट इज OB। तो सेम फॉर लूप, बट वी हैव कन्वर्टेड इनटू OB, एरे को कन्वर्ट कर दिया, और हमने इसको इस OB, ओके, इस OB के इंडेक्स को हमने रिट्राइव करके उसी वैल्यू को डिस्प्ले, वैल्यू एट इंडेक्स, और मैं अभी वही प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो सी द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड लाइक दिस। yes yes, everyone is clear with this, how we have displayed array list in different ways? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now ये रिवर्स भी कर दिया हमने। now second program will be doing add, जैसे मेरे ख्याल से आपको पता है कि with using add functions we can, अभी थोड़ा सा फास्ट में लेता हूं मैं, कुछ कुछ फंक्शनलिटीज को हमें यूज करना है। तो how we will be adding an element into an array list, very simple, using an add function जो हमने अभी लिया है। add function से आप टेक्स्ट को डालो, नंबर को डालो, डिपेंड अपॉन योर प्रोग्राम कि आपको क्या डालना है। सो एड फंक्शन इज यूज्ड फॉर एडिंग एन एलिमेंट इनटू योर एरे लिस्ट। सेकंड इज दैट रिमूव इज अ फंक्शन, जैसे आप ऐड कर सकते हैं उसी तरीके से आप रिमूव भी कर सकते हैं। सो if you have added IBM or Java array, you want to remove this Java, you just have to say
al डॉट रिमूव जावा, यानी डायरेक्ट वैल्यू डालो, वो खुद सर्च करेगा और सर्च करने के बाद उसको डिलीट कर देंगे। वेरी सिंपल। सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो फॉर इंडेक्स नंबर, फॉर लूप, लॉजिक बीजिक कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फंक्शन यूज करना है। ऐड करना है तो ऐड फंक्शन यूज करो, रिमूव करना है तो रिमूव फंक्शन यूज करो। ये खुद सर्च करेगा और सर्च करने के बाद उसको डायरेक्टली ही डिलीट करेगा। नो नीड फॉर राइटिंग एनी कोड दैट जहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा, सर्च करने के बाद उस जगह को, उस वैल्यू को डिलीट करना पड़ेगा, उसके इंडेक्स को वेकेंट करना पड़ेगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट ऐड करो, रिमूव करना है तो रिमूव फंक्शन पे यूज करो। सेम वे क्लोन करना है, क्लोन यानी क्या, डुप्लीकेट। उस एरे को आपको मैनिपुलेट करना है, टेम्पररी आपको उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको यूज करना है। सो यू कैन डू इट क्लोन। सो दैट इज वेरी सिंपल। क्लोन फंक्शन से आप उसको क्लोनिंग कर सकते हैं। एंड जो भी आप क्लोन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप नया बनाने वाले, इट शुड बी एन ऑब्जेक्ट, इट शुड बी एन ऑब्जेक्ट। वो भी है रन टाइम डेमोन्स्ट्रेशन में बोलूंगा। नाउ क्लियर थोड़ा अलग होता है, रिमूव अलग होता है। क्लियर से पूरी एरे लिस्ट क्लियर हो जाएगी, आपको एक दो नहीं, जितनी भी वैल्यूज आपने ऐड किए तो क्लियर नाम के फंक्शन से पूरी वैल्यूज आपका एरे लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा। ओके, सो क्लियर विल बी रिमूविंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ योर एरे लिस्ट एंड डायरेक्टली आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। नाउ इंडेक्स नंबर भी आप उसके अंदर से सर्च कर सकते हैं, एट इट इज इंडेक्स ऑफ। सो आप वैल्यू से उसका इंडेक्स नंबर भी सर्च कर सकते हैं। तो पांच नंबर कितने नंबर इंडेक्स पे है, सो 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, क्या इंडेक्स नंबर है। सो दिस इंडेक्स नंबर विल बी डिस्प्लेड बाय यूजिंग इंडेक्स ऑफ। सेम वे ट्रिम टू साइज, ट्रिम टू साइज यानी आपकी अगर एरे लिस्ट में आगे की जगह स्पेस वैकेंट है, यानी एक्स्ट्रा वैल्यूज उसने ऐड करके आपने डिलीट कर दिया और जगह एम्प्टी स्पेसेस उसके अंदर एंटर करके रखे हुए हुए थे या फिर है चुके, डिलीट आपने करने के बाद वो जगह इंडेक्स नंबर वैसे रहता है। अगर आपको शॉर्ट करना है, अननेसेसरी वैल्यूज को रिमूव करना है और आपको कॉम्पैक्ट बनाना है आपको एरे का, तो ट्रिम टू साइज, आप उस ट्रिम टू साइज में से आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो। ओके, नाउ these are the basic functions used for doing some operations. So we'll go for directly demonstration of this program. तो हमें कौन कौन से फंक्शन देखना है अभी आज के इसमें। तो रिमूव को देखेंगे। Same program I have added over here. See, इसको कमेंट में डाल देते हैं और हम अभी स्टार्ट से चलते हैं। नाउ व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव इंपोर्टेड दिस पैकेज और मैंने यूटिल पैकेज में लिया, उसमें एरे लिस्ट चाहिए मुझे तो एरे लिस्ट डाल दिया। आपको नहीं यूज करना, आपको सिंपल चाहिए तो गो फॉर स्टार। क्लास बना दिया मैंने रिमूव, दैट इज एरे लिस्ट रिमूव, और मेन फंक्शन में मैंने एरे लिस्ट बना दिया। ना मुझे स्ट्रिंग का चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर यानी सिर्फ इंस्ट्रक्शन, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आई वांट ओनली ऑफ स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज विल बी एडेड इनटू दिस। अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो मैं इंटीजर का बना सकता हूँ। सो दिस इज वन थिंग, string स्ट्रिंग। ओके, सो ये बन गया स्ट्रिंग का एरे लिस्ट। अब उसमें ऐड करना है तो क्या करना है, जिस al डॉट एड नाम के फंक्शन से आप उसके अंदर स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। सो डबल कोट में इट विल बी, आई विल बी एडिंग सपोज जावा array list dot add function and I will say python array list dot add android, choice is yours, कितनी चाहिए आपको। so array list dot add C++ and last one array list dot add डबल कोट के अंदर JS जावास्क्रिप्ट। ओके, ना उसको दिखाने के लिए वेरी सिंपल है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट साइज, अभी मैं यहाँ पर साइज दिखाना चाहता हूँ तो वेरी सिंपल, साइज ऑफ एन एरे लिस्ट, तो al डॉट साइज से हमें साइज आ जाएंगी। नाउ आई वांट टू रिमूव एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग, तो वेरी सिंपल, एरे लिस्ट, अभी उससे अच्छे मैं पहले डिस्प्ले करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं पूरे एरे लिस्ट को डिस्प्ले कर देता हूँ। सो वेरी सिंपल, दैट इज al डॉट
टू स्ट्रिंग, तो हम उसने दिखा दिया। ना मुझे रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है? आई वॉन्ट टू रिमूव एंड्रॉइड। और रिमूव करने के लिए वेरी सिंपल, दैट इज AL डॉट रिमूव। और इट इज केस सेंसिटिव, ध्यान में रखना। मैंने लिख दिया ANDROID एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड अलग है, ये एंड्रॉइड अलग है। ओके, मैंने ये लिख दिया। और उसके बाद मेरा काम होने के बाद system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ। नाउ द वैल्यू विल बी डिलीटेड और नॉट, टेल मी, हो जाएंगे क्या? मेरे को ये इस लिस्ट में जावा है, पाइथन है, एंड्रॉइड है, C++ है और JS है, मुझे ये एंड्रॉइड को रिमूव करना है। तो मैंने ये फंक्शन यूज किया, दैट इज एरे लिस्ट, यानी ये एरे लिस्ट में जो भी ऐड किया है उसमें से रिमूव कर दो एंड्रॉइड को। सो मैंने ये डाल दिया एंड आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। विल दिस रिमूव एन एंड्रॉइड? क्या लग रहा है? नो नो नो। क्यों? ए स्मॉल केस। सर इंडेक्स लगेगा ना? हाँ हाँ, यहाँ पर इंडेक्स नंबर को हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ये केस सेंसिटिव है, ये एंड्रॉइड का ए। हाँ, ये एंड्रॉइड जो है ए, इट इज एन अपर केस एंड दिस एंड्रॉइड ए इज इन लोअर केस, सो इट इज केस सेंसिटिव। वैल्यूज विल बी कंसिडर्ड एज केस सेंसिटिव। अभी मैं यहाँ पर ए डाल रहा हूँ, एंड्रॉइड, यहाँ पर एंड्रॉइड। ओके, तो एंड्रॉइड और ये एंड्रॉइड सेम होगा। जैसे यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा स्पेलिंग ये लोअर केस में डाल देता हूँ और मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ, तो आउटपुट जब भी आ जाएगा तो ये इसको रिमूव नहीं करेगा। 1 सेकेंड, आउटपुट इज कमिंग। ओके, तो जैसे पहला था, ये सिर्फ ये मैं बोलता हूँ एक बार, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, मैं यहाँ पर बोलता हूँ ओरिजिनल, या फिर बिफोर रिमूव, एंड दिस इज आफ्टर रिमूव। ओके, अभी मैं यहाँ पर एंड्रॉइड का ए अपर केस में कर देता हूँ, एंड व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, एंड्रॉइड विल बी रिमूव डायरेक्ट एंड द स्पेस विल बी अगेन रिमूव। सी, ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड गया और उस जगह पर फ्री एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी वैल्यूज नहीं ऐड किया। उसने क्या किया, उसके जगह पर डायरेक्टली आगे वाले वैल्यू को असाइन कर दिया। सो इंडेक्स नंबर इज चेंजिंग डायनामिकली। सी, रिमूव फंक्शन इज चेंजिंग इट्स, रिमूविंग इट्स वैल्यू आल्सो, और उसके इंडेक्स नंबर पे आगे वाला जो है बंदा, उसको वो ऑक्युपाई कर देता है। यानी जैसे हमने देखा है कि लाइन में हम क्यू में खड़े होते तो कोई बंदा बीच में से निकल गया तो हम उसकी जगह ऑक्युपाई कर देते। सेम सिचुएशन इज हैपनिंग इनटू एन एरे लिस्ट। एज सुन एज यू आर रिमूविंग इट, वो एरे में नहीं था। एरे में अगर आपने वैल्यू को निकाल दिया, इंडेक्स नंबर कभी चेंज नहीं होता था, इंडेक्स नंबर वाज रिमेनिंग कांस्टेंट। आप उसमें वैल्यू डालो या ना डालो, एक बार उसने ऑक्युपाई कर दी जगह, वो जगह सबके लिए यूनिफाइड हो जाएंगी, वो जगह हमेशा ऑक्युपाइड ही रहेंगी। बट इन एरे लिस्ट इट इज डायनामिक। आपने वो वैल्यू को रिमूव कर दिया, इमीडिएटली उस इंडेक्स पे आगे वाली जो उसका नेक्स्ट वैल्यू उसके बाद ऐड किए, वो ऑटोमेटिकली ऑक्युपाई करेगी, वो जगह वेकेंट हो जाएगी। यही खासियत है डेटा स्ट्रक्चर की, और दिस डेटा स्ट्रक्चर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे लिस्ट। सो एरे अलग होता है, एरे इज स्टैटिक, थोड़ा नॉन फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से एरे लिस्ट इज फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर, और हम उसके इंडेक्स नंबर की वजह हम उस वैल्यूज को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर सर्चिंग एनीथिंग, देयर इज नो नीड फॉर राइटिंग एनीथिंग फॉर सर्चिंग अ रिकॉर्ड। सो रिमूव फंक्शन सर्च भी करेगा और सर्च करने के बाद उसको डिलीट भी करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एन एरे लिस्ट। ओके, ना ये हो गया हमारा एग्जांपल एरे लिस्ट का। नाउ सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे। क्लियर अभी? हाँ, ये अभी इसको क्लियर, 1 सेकेंड, अभी अभी ये हमने डिस्प्ले करने के बाद हम इसको क्लियर भी करेंगे। चलो, सो दिस इज क्लियर, क्लियर एरे लिस्ट। अभी हमें क्लियर करने के लिए सिस्टम डॉट आउट पहले डिस्प्ले करेंगे, क्लियर ऑपरेशन ऑन एरे लिस्ट। तो अभी क्लियर ऑपरेशन हम किस तरीके से करने वाले हैं? इट इज वेरी सिंपल, दैट इज एरे लिस्ट डॉट क्लियर। इतना ही फंक्शन यूज करना है, और अभी हम डिस्प्ले करेंगे क्या सही तरीके से हमारा एरे की वैल्यू सब डिस्प्ले हुई कि नहीं, रिमूव हुई कि नहीं। सो एरे लिस्ट डॉट
टू स्ट्रिंग। तो चलो अभी ये इसको रन करके देखें। नाउ दिस इज रिमूविंग एन एंड्रॉइड, नाउ दिस इज क्लियरिंग ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को हम अभी क्लियर कर सकते हैं। सो आई हैव सेव्ड इट एंड नाउ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। नाउ सी, previous array में हमारे Java, Python, Android, C++ and JS data structure were there. After removing Android, we are see getting Java, Python, C++ and JS. Android को हमने remove कर दिया. And finally, when I'm using clear function, so clear is removing everything. Now it's empty square brackets, nothing, no values been added over there. So remove function will be removing only one element. Search करने के बाद अगर मिलने के बाद उसको डिलीट करेगा, बट क्लियर विल बी क्लियरिंग और एवरीथिंग क्लियर करेगा, पूरे चीजों को क्लियर करके डालेगा। सो दिस इज पॉसिबल ओवर देयर। ओके, अभी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्लियर करने से पहले उसको क्लोन करेंगे। सो क्लोन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम यूज करेंगे क्लोन। क्लोन मतलब क्या, डुप्लीकेट बनाएंगे उसका। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या है, हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सो ऑब्जेक्ट हम उसको बोलेंगे क्लोन is equal to array list dot clone। तो ये होगा क्लोन हमारा डुप्लीकेट एरे लिस्ट का। अभी हम इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन करें, एरे लिस्ट खत्म हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट तो उसमें से सब डिलीट हो चुका है। अभी हम क्लोन में सही तरीके से कुछ है क्या नहीं अभी देखेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और अभी हम देखेंगे क्लोन में कुछ है क्या। सो क्लोन वैल्यूज, अभी क्लोन वैल्यूज कैसे हमें देखना है, इट्स वेरी सिंपल। हम यहाँ पर बोलेंगे प्लस CLONE क्लोन डॉट टू स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, अभी क्लोन में जो हमने पहले रिमूव करने क्लियर करने से पहले उसमें टेम्पररी स्टोर करके रखा था क्लोन में, तो हम अभी देखेंगे क्लोन से वो वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं, क्या उसमें वो स्टोर रखे हुए कि नहीं। तो क्लोनिंग इज अगेन पॉसिबल। सी द क्लोन कंटेन्स ऑल द वैल्यूज जावा, पाइथन, C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने रिमूव करने के बाद क्लोनिंग किया है। अब पहले रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद हमने उसको क्लोन कर दिया। क्लोन मतलब क्या, डुप्लीकेट ऑफ द सेम रिकॉर्ड, xerox of the same records. So clone function is converting the whole array list object into another object with same values that you have added previously. जितने values आपने add करके रखे उतने values वो उसमें convert करेगा, and that you can use at any runtime, any situation for the purpose of execution. Okay. Now I think so. Add is completed, remove is completed. Then index of. So now we want to get an index of. So अभी मैं Android लेता हूँ, मतलब रन टाइम में देखेंगे, अभी क्लोन में ही वर्कआउट करेंगे। सो हम देखेंगे अभी यहाँ पर system.out.println, अभी हम देखेंगे जावा कौन से इंडेक्स या फिर पाइथन कौन से इंडेक्स है। सो इंडेक्स ऑफ पाइथन कौन सा है, सो दैट इज क्लोन डॉट व्हाट, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स। तो क्लोन को नहीं कर सकते हम, एरे लिस्ट को ही कर सकते। तो मैं ये जो क्लियर करने वाला लॉजिक था मैं उसको थोड़ा सा निकाल देता, इसको भी मैं निकाल देता, हमारा इसका भी साथ कुछ काम ही नहीं, क्लोनिंग का हमारा कुछ काम ही नहीं। ओके, तो वंस so after removing this I want to do an operation, that is I want to get an index of this Python. So Python का इंडेक्स क्या है, तो ढूंढने के लिए वेरी सिंपल, दिस इज अगेन अ सर्च ऑपरेशन। सो array list dot index of, और हम अभी यहाँ पर डबल कोट में डालेंगे बिकॉज इट इज स्ट्रिंग। सो मैं बोलूंगा Python PYTHON, सो उसका इंडेक्स को हमें बताएगा रन टाइम। आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। So the index of Python is 1. क्यों? Because Java is 0, Python is 1. अगर मुझे इंडेक्स नंबर देखना है जावा स्क्रिप्ट का, सो JS, थोड़ा सा स्पेस देके उसको खोल देता हूँ। तो JS जावा स्क्रिप्ट का पाइथन ये क्या है इंडेक्स नंबर, सो इट विल गेट एन इंडेक्स नंबर एज 3। क्यों? क्योंकि 0 मतलब जावा, पाइथन मीन्स 1, C++ मीन्स 2 एंड JS मतलब 3। सो 3 will be your
Yes. So this is an output of this. So index of will be giving you the index number of that corresponding value, and this shows that array list is following a sequence mode of adding element at a specific index number. Automatically index number is generated, and automatically at that index number immediate values are added. तो हमें इंडेक्स नंबर को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, और हमें वैल्यूज को उस इंडेक्स नंबर की देने की भी जरूरत नहीं. Automatically data structure of array list will be adding element to that corresponding index, and we can retrieve that index, क्योंकि हम असाइन तो नहीं कर रहे, बट हमें रन टाइम में चाहिए वो इंडेक्स नंबर. So you can use this index of function for getting that index number of your array list. Okay. ट्रिम टू साइज से कुछ इफेक्ट नहीं होता, मैं सिर्फ ट्रिम को दिखाऊंगा, इससे कुछ फर्क नहीं होता. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट, क्योंकि हमारे पास कुछ एम्प्टी वैल्यूज है ही नहीं, तो क्या दिखाना है. तो मैं बोलता हूँ ट्रिम, तो ट्रिम का कुछ आउटपुट ही नहीं है. सो एरे लिस्ट डॉट ट्रिम, ट्रिम टू साइज. ओके, दैट्स इट. ट्रिम टू साइज 5. ये ऊपर तो नहीं हो रहा है यहाँ, तो लेट इट बी. ट्रिम तो हम यूज नहीं करें. देन these are the only operations I think so. We have completed with the add, remove, and then clone, clear, index of. ट्रिम का एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं वो दिखाता हूँ आपको. ट्रिम का, ट्रिम टू साइज. So same, I have created array list of 9 and it contains some only 4 values. Array list will be trimming this one. तो मैं अभी पहले इसको दिखाता हूँ, and then after that I am going for trimming it. So पहले array list को दिखा दिया, फिर बाद में उसको ट्रिम कर दिया, एंड लिस्ट को फिर फाइनल दिखा देता हूँ. सेव इट एंड रनिंग दिस. तो सेम आउटपुट में कुछ फर्क नहीं होता, बिकॉज एम्प्टी स्पेसेस आर ऑलरेडी नॉट देयर इन एरे लिस्ट. तो ये ज्यादा करके यूज नहीं किया जाता है, बट उससे कुछ फर्क नहीं गिरता. एक्चुअली ट्रिमिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन एरे लिस्ट बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रीडिफाइंड. यस, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? सर बिफोर एंड आफ्टर साइज प्रिंट कर सकते हैं ना? कौन सी साइज? एरे लिस्ट की साइज? हाँ, आपको साइज दिखना है क्या रन टाइम में? ओके, नो प्रॉब्लम. हम ओके, वो ले एग्जांपल लेते हैं हम. अभी ये जो हमारा प्रोग्राम था ये वाला, हाँ, तो हम क्या करेंगे, अभी इसके साइज ले लेंगे. ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम बोलेंगे यहाँ पर बिफोर साइज. तो ऐड करने से पहले साइज ले लेंगे. सो एरे लिस्ट डॉट साइज. ओके, और हमने सब ऐड करने के बाद फाइनली हम साइज ले लेंगे. ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम बोलेंगे आफ्टर एडिंग साइज. थोड़ा सा कोलन देता हूँ, फिर थोड़ा स्पेसिफाई हो जाएगा वैल्यू. स्पेस कोलन. सो अगेन इट इज array list dot size. So you can use सर सिंबल. अरे हाँ, प्लस सिंबल. तो ये बाकी वाला ऑपरेशंस में उसको कमेंट में डाल देता हूँ. बस पहले वाला साइज और बाद वाला साइज कितना है. तो फर्स्ट साइज इज 0, and after adding this 5 elements 1 2 3 4 5 size is 5. ध्यान में रखना, साइज और इंडेक्स में फर्क होता है. साइज ऑलवेज कंसिडर दिस फर्स्ट एलिमेंट एज 1, और जब हम इंडेक्स नंबर को जाते हैं तो इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. सो साइज is always +1, index is always the total size -1. So ये ध्यान में रखना, index always starts with 0, size always starts with 1. So for this there are 5 elements, so size will be 5. So you can, at any situation you can use this size function for getting the length of your array list. So is it सर clear? बट बिफोर साइज 9 होनी चाहिए ना?
कौन सी? नहीं, ये मैंने लिख दिया ना, नहीं ले रहा ना वो, मैं बोल रहा ना, इसका कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज अ डायनेमिक। सिंपल ओके एरे सर। अगर आपने बोल दिया हो तो एरे अगर आपने बोल दिया तो एरे ऑटोमेटिकली साइज ले लेता है, पर जावा का एरे और सी प्लस प्लस और सी का एरे थोड़ा अलग है। जावा में अगर ओके आपने सर। वैल्यूज डाली तभी वो ऑक्यूपाई करेगा इस वैल्यूज को। एरे में, जावा के एरे ऐसा होता है कि मैक्सिमम लेंथ विल बी 9 इनिशियलाइज करने के बाद। अगर आपने वैल्यूज कम डाले तो वो कंसिडर करेंगे लोअर वैल्यू को, अगर आपने उसके आगे भी गए तो भी वो कंसिडर करता है, बिकॉज इट्स अ डायनेमिक, बिकॉज इट्स जावा इज अलाउइंग दैट वन। बट सी और सी प्लस प्लस में वैसा अलाउड नहीं, आपको नंबर पता ही होना चाहिए कि आपकी एरे की साइज क्या है। यहाँ पर ऑप्शनल होता है जावा में, एरे लिस्ट में आपने यहाँ पर 1 भी डाल दिया, 0 भी डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं करता, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडरिंग दिस। फॉर इट ऑब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दिस ऑब्जेक्ट द क्लास फंक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन द साइज। सो वो साइज के ऊपर ज्यादा वर्कआउट नहीं होता, फोकस नहीं करता। यही खासियत है जावा की, कि अगर आपने कुछ प्रोग्राम करना चालू कर दिया और आपको साइज पता ही नहीं है, अनलिमिटेड यू वांट टू डू डेटा वर्किंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स और विद योर वैल्यूज, तो आपको पता नहीं है आपका प्रोग्राम कितना डेप्थ तक आप उसको यूज करने वाले, उसको कितना एक्सटेंड करने वाले, तो साइज के ऊपर आपको वो रेस्ट्रिक्ट कभी नहीं करेगा जावा कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। वही ड्रॉबैक था जावा सी का, कि वहां पर हमें कांस्टेंट वैल्यूज देने पड़ते थे, बिकॉज इंटीजर और ये बहुत छोटे डेटा टाइप्स थे। अब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट कर दिया है, रैपर क्लासेस आ चुके, तो ये क्लासेस इतने कंफर्टेबल है कि उनको पता है कि हमें जैसे साइज ऐड करेंगे, हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे, ऑटोमेटिक उसकी साइज बढ़ती जाएंगे, और जैसे आप उसको रिमूव करेंगे, गार्बेज कलेक्टर विल बी रिमूविंग द एक्स्ट्रा स्पेसेस और वो एम्प्टी करेगा। तो ये खासियत है जावा की, जावा गार्बेज कलेक्टर इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ रिमूविंग सम अननेसेसरी वेरिएबल्स विद अननेसेसरी वैल्यूज एट रन टाइम। तो यही खासियत है जावा की, बाकी कुछ नहीं। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई जावा इज मोर एफिशिएंट एंड मोस्ट एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in the current scenario. Yes. Okay, I'm stopping because your next lecture is still pending. So we'll meet on Monday, tomorrow and day after tomorrow. There is close. मेरे ख्याल से आपको पता है कि हम बंद है. But assignments will be sent to you. Search on portal पे search करो, और जितने भी assignments हमने क्लास में यहाँ पर लिए, सभी assignment को आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये assignments मैंने डाले हैं पोर्टल के ऊपर, सेपरेट सेपरेट लिखे हैं। ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक साथ डेमोन्स्ट्रेट किया। आपको अगर लिखना है, you can write it on a separate page, a separate assignment for cloning and for inserting and for removing and for displaying it. Okay, so we'll meet on one day at 10. Till then, take care. ओके सर, थैंक यू। One ओके second, सर। 1 second, कुछ रिमूव मत करो, हो जाओ, मुझे सिर्फ 1 सेकंड में अटेंडेंस लेना है बस। पढ़ाई कर रहे कि नहीं? आपके डेट आ गए ना एग्जाम की, देखिए सबने? यस सर। सर